Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one of the most demanding scholarship, that is NSP. The portal registration have started. So here I am with the video showing you a live demo on to how to go ahead with the registration so that आपसे कोई भी mistake ना हो, and this being one of the best scholarship offered by government, कोई भी ऐसा student on to the channel ना हो कि कोई mistake की वजह से रह जाए with the scholarship. Okay, so I am making it very sure and providing you the complete details so that you are absolutely clear when you are sitting for filling the form. Okay, उससे पहले मैं बता दूँ Reliance Foundation Scholarship जिस वीडियो पे बहुत से व्यूज मिले हैं ऑन टू द चैनल एंड many of you have applied. The one who are remaining, kindly check the link in the description box I have provided. उसमें है aptitude test, उसकी भी preparation हम on है on this channel. I have kept many videos, 4 videos are uploaded जिसमें मैंने आपको एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करवाई है. साथ ही ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी आई एम टीचिंग यू एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि आपको काम लगेगा फॉर क्रैकिंग एग्जामिनेशंस लाइक गेट ऑल्सो. ओके, तो एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर गोइंग टू फेस एन एप्टीट्यूड सेक्शन. तो उसकी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ करने के लिए अगेन द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. The lecture is scheduled, so you can absolutely join free of cost and see you there also. Coming to today's video, that is on NSP. पहले तो basic बता दूँ what are the key features of that particular NSP portal, National Scholarship Portal. तो it's an Indian government portal. Okay, so totally reliable because it's by Government of India and the people are genuinely getting the scholarship of a very good amount. The criterias are also liberal, even the category biased बिल्कुल भी नहीं है. All the category people can apply, open, SC, ST, OBC, any category people can apply. All states people can apply. इंडिया के जो भी स्टेट में आप रिलाई करते हो as a citizen of Indian you can apply this. There is no exam like into other scholarship. You have an exam to be cleared to get the scholarship. इसमें ऐसे कोई exam है नहीं. You can directly have free registration done. And it's for all UG program, under graduation program, that is post matric जो scholarship है NSP की is for all UG programs. Okay, so I'm very much excited to showcase the complete thing in front of you. But even into NSP we have pre-matric program also, जो कि 10th पहले के जो लोग हैं studying into school, for them also we have scholarship onto NSP. तो अगर उसका वीडियो अगर आपको चाहिए for any of your relative, friends, sister, brother, तो you can absolutely comment. I'll make a video, separate video onto pre-matric scholarship onto NSP also. आज का पूरा वीडियो जो है वो पोस्ट मैट्रिक के लिए है, ठीक है. तो इसी में एक PDF जो है वो अटैच्ड है onto the NSP portal. उसका हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, showing you the bit of guidelines onto what is basically into this particular scholarship. तो पहले तो 82,000 fresh scholarships per annum would be given. Okay, तो very big number scholarships ये लोग देने वाले. 82,000 students को ये लोग scholarship देने वाले जो कि colleges, universities में हैं, professional courses कर रहे हैं like medical, engineering जैसे दूसरे undergraduate courses जो भी कर रहे हैं, सभी के लिए ये है scholarship. साथ ही 50% of the scholarship are embarked for girls. So it's 50-50%, 50% for the girls and 50% for the boys. क्योंकि boys की comments आती है मैम रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स है, boys कहाँ है. अरे भाई 50% गर्ल्स के लिए तो 50% बॉयज़ के लिए भी तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, राइट. सो ये चीज़ तो है ही. साथ ही कुछ स्टेट्स हैं लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उनके लिए थोड़े स्लॉट्स रिजर्व्ड हैं 3%. ऑल्सो रेशियो इज़ बिंग गिवन 3:3:1 जो कि स्कॉलरशिप दी जाएगी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को, साइंस स्टूडेंट्स को एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स को. ओके, तो रेशियो में अगर इसको मैं परसेंटेज में अगर आपको समझा दूँ तो दैट इज़ 3/7 इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़, दैट इज़ अराउंड 45% जितना होगा ह्यूमैनिटीज़ का, 42 to 45. ओके, सेम फॉर साइंस एंड कॉमर्स के लिए जो 14-15% रहेगा, ठीक है. तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल उन्होंने कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्कॉलरशिप अमॉन्ग 82,000 स्टूडेंट्स. ओके, सो ये चीज़ है. साथ ही एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए होगा जो कैंडिडेट्स हैं उनके 80 परसेंटाइल इनटू द 12th होना ज़रूरी है. ओके, सो ये चीज़ बेसिक सा क्राइटेरिया है. देन डिस्टेंस कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज वालों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज वालों के लिए ही है. साथ ही जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से ये लोग कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए.
ओके ये चीज़ है। फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड दूसरी कोई और स्कॉलरशिप आपकी होनी नहीं चाहिए प्रेजेंटली रनिंग। ओके, इवन यू कैंट अप्लाई इट आफ्टर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। ओके, तो यू कैन मर्ज टू स्कॉलरशिप विद दिस NSP स्कॉलरशिप। ओके, नाउ हाँ, अगर आप कॉलेज को चेंज कर रहे हो मीनवाइल इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो दूसरी कॉलेज में चेंज होते हुए रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप आप कर सकते हो, बट अगेन दैट कॉलेज का नाम इस कोड के साथ होना चाहिए, वो आप लिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोविजन भी उन्होंने दिया है। ये जो 3 रूल्स हैं लास्ट के, वो रिन्यूअल के लिए है। उसमें बेसिक सा क्राइटेरिया रही है कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी ज़रूरी है, साथ ही आपका स्कोरिंग 50% होना ज़रूरी है कॉलेज एग्जाम्स में। ओके, तभी आप रिन्यू के लिए जा सकते हो फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया एंड द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगी जहाँ पे आई बी शोइंग यू द कंप्लीट डेमो ऑन टू हाउ टू गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन। पूरा फॉर्म फिलअप करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि एक एक स्टेप आप पहले तो समझ लेना, फिर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं, सो दैट यू आर नॉट स्टक अप इन बिटवीन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि यू आर सिटिंग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके नंबर्स भी एंटर करने रहते हैं। एंड द फॉर्म इज टू बी फिल्ड एंड उसके बेसिस पे यू विल बी शोन विथ सर्टन स्कॉलरशिप ऑफर्ड टू यू। लाइक आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे दे विल सजेस्ट यू सर्टन स्कॉलरशिप्स, और वो स्कॉलरशिप की कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वहीं पे फ्लैश होगा। एवरीथिंग आई बी शोइंग यू ऑन टू द स्क्रीन। सो नेक्स्ट, गोइंग टू द स्क्रीन नाउ। ओके, तो स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हो NSP फुल फॉर्म विद द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। एंड इनटू दैट यू नीड टू गो टू द न्यू रजिस्ट्रेशन। लॉगिन के नीचे ही है। वंस यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द गाइडलाइन, द बेसिक वंस, यू नीड टू जस्ट टिक मार्क कि हाँ आई अग्री टू एवरी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस mentioned above, and you can continue. Once you press the continue button, you will get this particular login page, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना रहेगा, जिस पे आ जाएगा आपका OTP। तो मेक श्योर यू एंटर द मोबाइल नंबर दैट इज़ अवेलेबल टू यू। एंड जैसे ही आपका OTP आता है, यू जस्ट नीड टू एंटर योर OTP, राइट द कैप्चा बिसाइड दैट। Yeah, once you enter the OTP and the captcha mentioned beside that, you just need to go with the verify button. Once it is verified, you will be asked to enter the Aadhaar number. जिस पे भी the linked mobile number है, उस पे भी वापस से OTP आएगा to have your Aadhaar card verified. The reason of doing this is they are taking the complete information of your Aadhaar card in the form filling. मतलब वहीं से आपका फ़ोटो, नाम वगैरह जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली वो लोग ले लेंगे। सो दे आर वेरीफाइंग द आधार ऑल्सो। ओके, जो OTP आया है, यू जस्ट नीड टू एंटर दैट एंड एंटर द कैप्चा विद इन द टाइम स्पान अवेलेबल। ओके, टाइम भी मैंशनड है, नहीं तो फिर वो वाला OTP आपका एक्सपायर हो जाता है। जस्ट नीड टू एंटर या। So one having Aadhaar can directly have the Aadhaar details entered, जिससे आ जाएगा आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, basics of your information. The one which is already available with your Aadhaar card is coming here directly. And फिर डालना है आपको scholarship type, category में post matric, state domicile would be your whichever state you are residing in, your father name according to your Aadhaar card, mother name according to your Aadhaar card. Then your email ID followed by the captcha mentioned. Okay, make sure your Aadhaar is linked with a bank account. ठीक है, जो कि यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हो, कैप्चा के नीचे mentioned है। Okay, writing that greetings, your bank account is needed, is added with the Aadhaar card. It is already mentioned and confirming. ये होना ज़रूरी है। Okay, so you need to have an account linked with your Aadhaar and you have successfully registered. देख सकते हैं आप, आपको just note down करके रखना है अपना registration number, the one which is highlighted with blue color, and the password has been sent to your mobile number. Now an temporary password is being sent. वो होने के बाद fresh registration पे जाइए, put your this application number and the password that you have received on your mobile number.
ठीक है, दिस इज़ अ टेम्परेरी पासवर्ड। आगे एक ऑप्शन आएगा जिसमें यू नीड टू सेट अ न्यू पासवर्ड ऑफ योर ओन। फाइन, देन यू नीड टू जस्ट एंटर द कैप्चा जो भी नीचे प्रोवाइडेड है। कई बार ऐसा होता है कि वंस यू एंटर द कैप्चा दे टेल इट टू बी इनवैलिड बिकॉज मे बी दे आर केस सेंसिटिव। तो प्रॉपरली देखते हुए आपको कैप्चा को एंटर करना है सो दैट यू नॉट गो रॉन्ग विद दैट। फाइन, सो देव जस्ट रिफ्रेश्ड राइटिंग अ न्यू कैप्चा। सो ऑन एंटरिंग दैट यू जस्ट नीड टू प्रेस विद द लॉग इन। तो फिर से एक आ जाएगा आपका 6 डिजिट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, सी OTP वेरिफिकेशन काफ़ी स्टेजेस में इसमें हो रहा है टू मेक इट वेरी श्योर यू आर वेरी मच ऑथेंटिक एज अ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वंस यू आर डन विद दैट यू जस्ट नीड टू चेंज योर पासवर्ड, क्योंकि जो मोबाइल में पहले आया था वो एक टेम्पररी पासवर्ड था। Now you need to create your own new password and then confirm your new password. Make sure you set a password that is satisfying all the conditions mentioned below. मतलब कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, सब कुछ सेटिस्फाई करते हुए नया पासवर्ड सेट कीजिए। ठीक है, वंस यू हैव सेट द फॉर्म ओपन्स एंड इनटू दैट यू कैन सी जो भी चीज़ हो चुकी है वो आपकी येस दिखी जाएगी। लाइक आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है तो वो येस है। फिर आप जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करते हो यू विल हैव डिफरेंट इनपुट्स टू बी गिवन। ठीक है, तो उसमें आपका स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी जो भी आपने भरा है वो तो आ ही जाएगा। साथ ही सिंगल गर्ल चाइल्ड आप हो या नहीं वो मेंशन कीजिए। रिलीजियन आपका मेंशन कीजिए। कम्युनिटी कैटेगरी कौन सी है बहुत सही से मेंशन कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप सजेस्ट की जाएगी। फैमिली इनकम को भी ध्यान से भरिए। अगेन स्कॉलरशिप वुड बी सजेस्टेड ऑन बेसिस ऑफ वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही से इन्फॉर्मेशन आपकी जो जेन्युइन है वही प्रोवाइड कीजिए। देखो यहाँ पे डे स्कॉलर और हॉस्टलर लिखा है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो यू आर अ डे स्कॉलर, अदरवाइज यू आर हॉस्टलर। ओके, वंस यू आर डन विद दैट यू विल बी क्रिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे आपको पूछा जाएगा टू एंटर योर कॉलेज। तो उसके लिए आपको अपना स्टेट, अपना सिटी सेलेक्ट करना है। फिर नीचे ऑप्शन आते ही आपको अपना कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वंस यू एंटर योर, जिस भी सिटी में आपकी कॉलेज है उसका स्टेट और सिटी, आपकी कॉलेज ऑप्शंस आ जाएगी, उसमें से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, फिर प्रेजेंट क्लास कोर्सेज जो भी आप कोर्सेज में हो, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, सिविल जो भी हो वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर, कौन से ईयर में हो वो मेंशन कीजिए। देन यू नीड टू मेंशन द मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर, फुल टाइम या जिस भी किसी भी मोड में हो आप, एंड द स्टार्ट डेट ऑफ द स्टडी मेंशन करना है। देन प्रीवियस बोर्ड, मतलब कि आपने 12th कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किया है वो बोर्ड को आपको मेंशन करना रहेगा अपना। ठीक है, वो बोर्ड के भी ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, उनमें से ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू नीड टू एंटर दैट। फाइन, गुजरात स्टेट बोर्ड, जो भी किसी बोर्ड में हो आप इन योर स्कूल टाइम्स यू नीड टू एंटर दैट। प्रीवियस कोर्स, मतलब कि 12th पास करते हुए आपने इंजीनियरिंग में आए हो तो 12th लिख दो, HSC बोर्ड। ओके, प्रीवियस पासिंग ईयर, देन दिस इज़ ऑल अबाउट योर बिफोर एंटरिंग इनटू दिस कोर्स, आपके पहले की डिटेल। ठीक है, तो वो चीज़ एंटर करनी है। 12th की डिटेल होने के बाद आपका यहाँ पे 10th का पूछ रहे हैं तो 10th का रोल नंबर डालना है। कन्फर्म योर रोल नंबर, योर बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, 10th में मार्क्स कितने थे वो रखना रहेगा। 12th का रोल नंबर, कन्फर्म 12th रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, 12th के मार्क्स। ओके, दिस फॉर्म, इसका ये जो पार्ट है फॉर्म का इज़ गिविंग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन टू योर प्रीवियस स्टडीज़, वो आपको सारी प्रोवाइड करनी है। तो मेक श्योर आप जब भी ये पार्ट फिलअप करने के लिए बैठो यू हैव योर 10th एंड 12th डिटेल्स ऑल अवेलेबल विथ यू। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन आप अपना फिल करना सो दैट यू डू नॉट मेक एनी ऑफ द मिस्टेक्स इन फॉर्म फिलिंग। देन अगर ये करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग भी आप डाल दो। ओके, ये अगर आपने कर दिया है फिर आपको दूसरी भी थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछी जाएगी आगे अबाउट योर 12th आप डाल रहे हो। ओके ओके, ठीक है, अभी बोर्ड का डालना है आपको, बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर गुजरात से हो, गुजरात स्टेट बोर्ड, जो भी किसी बोर्ड से, किसी भी स्टेट से आप, वो सारी लिस्ट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट। मार्क्स डालने के बाद अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया है तो उसका भी डिटेल अगर आपको
है तो श्योरली यू नीड टू एंटर द डिटेल ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू हैव अपीयर्ड एंड स्कोर्ड. सो इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट की थी, उनमें आपका रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, तो ये सारी टैब्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल्स डालने के लिए है. अगर नहीं दी आपने कोई एग्ज़ाम तो इट्स ओके नॉट टू एंटर एनी डिटेल्स. देन द अदर डिटेल्स में आ जाती है आपकी डिसेबिलिटी है या नहीं, वो डाल दो. नंबर ऑफ डिसेबिलिटी, मैरिटल स्टेटस डालना है, पेरेंट्स का प्रोफेशन डालना है, मैरिड हो अनमैरिड हो टिक कर दो. पेरेंट्स का प्रोफेशन अगर नहीं है तो अदर्स भी ऑप्शन है वो आप डाल सकते हो. ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर ऑप्शन आ रहा है तो वहीं पे डालना आप. एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, अगर आपका सिंगल पेरेंट है तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके, इफ़ वन ऑफ इट इज़ नॉट अलाइव्ड, आपके पापा नहीं है या तो मम्मा नहीं है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, सो जस्ट आई एम सिलेक्टिंग द प्रोफेशन ऑफ पेरेंट्स. ओके, इन्होंने लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर अदर्स टिक कर सकते हो आप अदरवाइज. ओके, सो नॉट एप्लीकेबल इफ़ योर बोथ द पेरेंट्स आर अलाइव देन इट्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे डाल दिया. एंड डिसेबिलिटी में भी डाल दिया. ओके, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आप पूरा डाल सकते हो. देन नेक्स्ट पे आप जाते हो जब भी, तो अभी यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू पुट योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट, योर हाउस नंबर, मतलब कि पूरा अपना एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना है. जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पे डालते हो, ये हो जाता है ऑलमोस्ट आपका फॉर्म फिलिंग डन, जिसके बेसिस पे NSP वुड बी सजेस्टिंग यू सम स्कॉलरशिप्स. ओके, तो यहाँ पे देखो लिख रखा है कि योर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन देयर इज़ नो स्कीम अवेलेबल. जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है उसमें उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे को स्कॉलरशिप देने के लिए. ठीक है, दे वुड हैव सर्च्ड विद द फैमिली इनकम क्राइटेरिया, परसेंटेज, एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग. अगर आपकी कोई ऑप्शन है तो आपको इस तरीके का आएगा. देखो टैब आपका कुछ इस तरीके का आएगा. देखो स्कॉलरशिप जो उन्होंने सजेस्ट किए मेरे को वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. तो अगर आप एलिजिबल हो तो ये आएगा. अगर आप देखो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे अगर आपको स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा ऑफर हो रही है. ठीक है, अगर कम हो रही है तो आपको एक ही जो है वो डॉक्यूमेंट को देना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू शुड गो विद द फॉर्म फिलिंग.